Hello, good morning everyone. Class ninth. As I told you that some of the good PPTs of students, good homework, I will appreciate, I will share in my video. So today I am having some students homework and it seems they have done their work beautifully. So let's see one by one. So first I am having the PPT of Chetiz Mane and he had made in the PDF format, but PPT is good. You can see the presentation, weathering and types. He covered the sequence, weathering, some pictures, mechanical weathering, correct. It is as per the homework guidelines, homework instructions, chemical weathering and biological weathering. So somewhere his work is good, but he used the same thing two times, and content is also good, so I can give 9 point out of 10. Okay, so for Chetiz Mane 9 points. Next is Pranav Thambre. Slide, it is in the PDF format. Same, he got a topic with types, pictures, factors, good. Biological weathering. Okay, so total slides are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So it's good. So same, I can give 9 points out of 10 to Pranav. Okay, so next is Prajakta Praveen Chowgule. This girl has done this one beautifully. Weathering, types, physical, chemical, biological. Physical means mechanical actually. And then after everything is good, but this is the example of rainbow bridge, and this rainbow bridge she is giving example as a for weathering. Okay, so pictures, content, presentation, everything is good, so I can give 10 out of 10 points to Prajakta. So let's see some other students. It's another PPT of Sarvari. Okay, weathering definition, it's good. It's explained properly. Even some good questions he has covered under the objectives, like describe the rock cycle, weathering and erosion, contrast physical, chemical and biological weathering. It's good. So content is good and it seems it's original, she did by herself, so I can give to Sarvari out of 10 points. Next PPT is from Rupam Hendre, but I don't know why Rupam file is not opening. The PPT is not opening properly, but that I can see he has made total 12 slides and each slides having good content, and as per the instruction he has completed the homework. So Rupam also deserved 10 points out of 10. So let's see another PPT. It's from Shyamanand Kate. Presentation is good, but class, school, something is missing. Weathering definition. First slide is the second one, but the first for the topic. And you can see he has written the definition of weathering in a proper way. Types. Physical weathering, it is
short and sweet concrete information what I can guess. Diagram is very good and it's a real picture. I don't know from where he has taken, but it's a real picture. It's good. The rock has divided into two parts. It's a block disintegration. Okay, plants. So he got some real pictures. Good. Chemical weathering, correct. Types of chemical weathering: acid, organisms, oxygen, correct. So pictures are excellent. Information is also good. So it is one of the best PPT what I can see. So I'm giving 10 points to the Shyamanand Kate 2. So the PPT appreciation work is over. Now get back to the main topic where we were. तो क्लास 9 हम लोगों ने मैकेनिकल वेदरिंग कंप्लीट किया था और मैकेनिकल वेदरिंग में आप लोगों ने फैक्टर्स लिखे हैं जो रीज़न है। एक तो टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, रिलीज ऑफ प्रेशर, वाटर और क्रिस्टल ग्रोथ। जब पानी अंदर जाके फ्रीज हो जाएगा और रॉक टूट जाएगी। प्रेशर, अंदर से प्रेशर, बाहर का प्रेशर अलग है, अंदर का प्रेशर अलग है, तो भी रॉक टूट जाती है हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से। तो वाटर का लगभग एक ही कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा और या तो ब्लॉक यानी ग्रेन्युलर डिस्टिलेशन हो या फिर वो एक्सफोलिएशन की फॉर्म में होगा। एक और है क्रिस्टल ग्रोथ, ये भी मैकेनिकल वेदरिंग का ही पार्ट है। तो इसका टॉपिक यहाँ पे है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इन रॉकी कोस्ट वेव्स हिट द सी क्लिफ्स। तो जहाँ पे समुद्र का पानी आता रहता है और वहाँ पे जो चट्टानें होती हैं, वहाँ पे जो पानी है वो वेव्स के थ्रू आता रहता है और वो चट्टानों से टकराता है। और जब टकराता है तो उसमें क्या एल्काइन वाटर होता है। तो सम वाटर ड्रॉपलेट्स हिट द क्रेक्स इन द रॉक्स एंड दिस एल्काइन वाटर। अभी एल्काइन वाटर क्या होता है? एल्काइन वाटर का जो पीएच होता है वो नॉर्मल वाटर के पीएच से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा पीएच एल्काइन आप केमिस्ट्री में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो एल्काइन, तो एल्काइन वाटर का सीधा मतलब है इसका पीएच वैल्यू ज़्यादा है। द सॉल्युबल मटेरियल इन द रॉक गेट डिसॉल्व। तो जो मटेरियल ऐसा होता है जो मतलब सोल्यूशन में या मिल सकता है उसके साथ में, वो हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि छोटे छोटे स्मॉल होल्स बन जाते हैं रॉक्स के साथ। तो जब पानी ने आगे हिट किया, समुद्र के पानी ने आगे हिट किया और वो एल्काइन वाटर है, तो उसने रिएक्ट किया और जो वैसे उसके जो पार्टिकल्स थे जो पानी के साथ डिजॉल्व हो सकते हैं, वो डिजॉल्व हो गए। अब जब डिजॉल्व हो गए तो वहाँ पे गैप आ जाएगा और वो गैप क्या है? वही छोटी छोटी ड्रॉप्स आपको दिख रही हैं, बूंदे जैसे, यानी बूंदों के जैसे होल दिख रहे हैं, ड्रॉप होल्स दिख रहे हैं आपको। तो ये ड्रॉप होल्स हैं, स्मॉल होल्स इन द रॉक्स। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन। अब एल्काइन वाटर गेट्स स्टोर्ड इन दीज होल्स। अब एल्काइन वाटर इसके अंदर जमा हो जाएगा आके, एंड बिकॉज ऑफ इट दिस वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड ओनली क्रिस्टल्स ऑफ एल्काइन मटेरियल रिमेन्स इन द रॉक्स. Crystal occupy more space. This causes tension in the rock and holes are formed in the rocks. It looks like a honeycomb. और फिर क्या? और उसकी वजह से फिर इस तरह से रॉक का एक तरह से ब्रेकिंग हो रहा है। तो पानी आगे हिट करेगा और इस तरह से डिसॉल्व होता जाएगा। ठीक है। रिलीज ऑफ प्रेशर, इसमें क्या होता है? It is not that tension is created in the rocks only because of temperature. Freezing of water or crystallization, the outer layers of the rock exert pressure on the inner or lower layers. And when this pressure ceases to exist, the lower or inner layers get freed from the pressure. This is also leads to weathering. तो weathering यहाँ पे भी पानी हिट करता है अल्काइन वाटर और उसमें डिसॉल्व होते रहते हैं रॉक के पार्टिकल्स धीरे धीरे, और ऐसा होता रहेगा तो रॉक धीरे धीरे डिके हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये वेदरिंग है। प्रेशर में क्या हो रहा है कि प्रेशर की कई रीजन हो सकते हैं। एक तो टेम्परेचर की वजह से प्रेशर चेंज होता है। दूसरा, रॉक के ऊपर जो प्रेशर लग रहे हैं, जैसे हवा बाहर बह रही है और अंदर कुछ प्रेशर है, टेम्परेचर में चेंजेस हुआ है, तो उस प्रेशर के चेंजेस की वजह से वो रॉक टूट जाती है। ठीक है।
अब इसमें 3 तरह के प्रेशर क्रिएट हो सकते हैं। टेंशन यानी प्रेशर कैसे होगा, या तो टेम्परेचर से होगा, या फ्रीजिंग ऑफ वाटर होगा, या क्रिस्टलाइजेशन होगा। और आउटर लेयर के ऊपर जो प्रेशर है वो इनर लेयर से अलग होगा। इस कंडीशन में अंदर प्रेशर अलग है, बाहर प्रेशर अलग है, तो उसके कॉन्ट्रडिक्शन से वो रॉक टूट जाएगी। ठीक है। अगला क्या है, वाटर। वाटर आपको पता ही कि पानी अंदर गया, क्रैक्स में जम गया और उसने तोड़ दिया रॉक्स को। ठीक है। और पानी नहीं भी जमा तो वो जाके रॉक्स के हर जगह जहाँ जहाँ पे मतलब उसको गैप मिलता जाएगा वो घुसता जाएगा पानी, और उस जगह को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा, वीक कर देगा, और फिर रॉक टूट सकती है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सम एरियाज एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल देन अदर्स, इन सच एरियाज सोकिंग अप रॉक water also causes weathering of some rocks like sandstone and conglomerate. These rocks are formed because of pressure on the agglomeration of the sand particles. Mud also makes sand particles come together. When water penetrates such rocks, the particles get loose and separate from the main rock. This is called granular weathering. ये block integration नहीं है, इसको block देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है block disintegration। तो ऐसा जगह जहाँ पे ज़्यादा गिरता है तो पानी की वजह से जो उसके बाहर के जो पार्टिकल्स हैं रॉक के, वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, एग्लोमरेशन होगा। और उस एग्लोमरेशन तो बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन द एग्लोमरेशन ऑफ द सैंड, तो जो एग्लोमरेशन का मतलब क्या है, वो सब चिपके हुए हैं, एक साथ यूनाइटेड है, एक साथ कंबाइंड है। लेकिन वो एग्लोमरेशन को कौन ब्रेक कर देगा, वो बार बार जो पानी उसके ऊपर गिर रहा है वो उसके एग्लोमरेशन को ब्रेक कर देगा और रॉक टूट जाएगी। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब आते हैं, अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है एक्सपेरिमेंट ऑफ चॉक, कि आप भाई गिलास में पानी लीजिए और उसमें चॉक डालिए। अब नेक्स्ट डे आपको क्या दिखेगा, व्हाट हैपेंड टू चॉक, चॉक तो घुल गई पानी में, पानी का कलर चेंज हुआ, हाँ चेंज हुआ। अब इसी तरह से आयरन के कुछ, ये आयरन के स्क्रू, few iron nails in the wet cloth, open the cloth after 2 days, इसको वेट क्लॉथ में रख दीजिए और बंद कर दीजिए। 2 दिन के बाद देखिए क्या होगा, तो उस पर क्या हो जाएगी, रस्टिंग आ जाएगी, जंग लग जाएगी और उसका कलर रेडिश कलर आ जाएगा। अब ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है पानी के साथ में, कहीं पे वो पानी के साथ डिजॉल्व हो रहा है, कहीं वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब देखते हैं What plays an important role in the chemical weathering? अब chemical weathering में सबसे important रोल किसका है, पानी का है। Rock is a mixture of many minerals and water is a universal solvent. Universal solvent का मतलब कुछ भी उसके अंदर घुल सकता है। Many things get dissolved easily in water. ज़्यादातर चीजें घुल जाती हैं पानी में। The solubility increase because of matter has dissolved in the water, and those materials which do not dissolve easily in water get dissolved in such solution. In areas that receive heavy rainfall, chemical weathering occurs in the following ways. तो सबसे पहले क्या है, कार्बोनेशन होगा। अब कार्बोनेशन में क्या होता है कि वो जो हमारी रॉक्स हैं वो रिएक्ट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो रेन वाटर व्हेन मिक्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बिकम्स लाइट कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन भी दिया है कि पानी के साथ क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, यानी CO2 आया, बनेगा क्या, कार्बोनिक एसिड बनेगा। उसका फार्मूला क्या है, H2CO3 है, यानी H2O प्लस CO2 मिलके क्या बन गया, H2CO3 बन गया। तो ये जब रिएक्शन होगी तो हमारी रॉक में क्या होगी, वेदरिंग होगी। उसके बाद सोल्यूशन में क्या है कि कुछ मिनरल ऐसे होते मिल जाते हैं पानी के साथ में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एट वडगांव दायरा इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट लाइमस्टोन गेट प्रेसिपिटेटेड केमिकली undergoes chemical weathering again similarly because of solution alkalis in the rock dissolve make them brittle। अब brittle का मतलब क्या है कि वो जल्दी टूट सकते हैं, brittle in nature। ठीक है। तो क्यों टूटेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है कि पानी की वजह से लाइमस्टोन जो है वो मिल जाता है और फिर वो ब्रिटल हो जाएंगे नेचर में। कर लिया है और कार्बोनेशन कर लिया है केमिकल वेदरिंग का। आज का होमवर्क यही है कि आप इन दोनों के बारे में लिखें, कार्बोनेशन क्या है और सोल्यूशन क्या है। दिस इज योर होमवर्क। आज आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।